Hello students, hi, this is Karan Singh. Welcome back to the class 10th. I hope you all have solved the last exercise of chapter number 3, pairs of linear equation in two variables. On your screen you can see the chapter. So it is quite an interesting chapter and we have been solving it from quite a while. Actually we have solved the graphical method. After that we have seen the substitution method. Okay, we have even seen the types of graphs, the intersecting graph, the parallel graph, and even the coincident graphs. Okay, and how to check that they are consistent or inconsistent. After that we have seen the substitution method, that was the exercise 3.3, completely based on the substitution method. We have solved it. Okay, and I assume that you all have solved all the intakes as well as exercise questions. Apart from that, we have solved the exercise 3.4 also, that is based on the elimination method. Okay, you might have solved the in-text example questions and the exercise question. It was also a quite easy exercise, and we have seen also the problem sums here. And this is the method which you are going to use in almost all the question. The elimination method is, if it is not given the question that which method you have to use, you can use this method. Okay, that's a very simple method. Now today we are going to study a completely new set of method, that is known as cross multiplication method. Okay, so let's see that what is cross multiplication method. That is the first thing. Okay, what is cross multiplication method? Let's see that. Cross multiplication, as the name is cross multiplication, so we need to do cross multiplication. That's it. Okay, so how we need to do the cross multiplication, that is the only thing you need to understand. Okay, and I'm going to explain you stepwise that how you should be applying the cross multiplication method, and आप किस तरह से solve कर सकते हैं और बहुत easily answer ला सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी. Okay, it is very simple method, but in the exam generally we don't use this all methods. We use elimination because that is very simple. Okay, and even substitution also sometimes. But if an exam it is given that solve using cross multiplication, then you have to solve using the method which is given. That is, if they are asking cross multiplication, you need to do cross multiplication. If they asked you that use elimination or substitution, you need to be using the same method. Now let's see that what you need to do, what are the steps you need to follow. First of all, while solving the cross multiplication, you need to be writing this equation in the standard form first. Always, if before beginning, you need to write in the standard form. For example, you see that this term C, the 35, is on the right hand side of the it is on the right hand side of the equal to. You have to bring it on the left hand side because this is a standard form of linear equation. So before starting the question, you do this. Now I assume that you people are clear now with these things, that what is A, what is B, what is C, what is A1, A2, B2, C2. This is, you all know that here it is 5 is A1, 3 is B1, and minus 35 is C1. Then here 2 is A2, 4 is B2, and minus 28 is C2. So these are the two equations, and we know all the coefficients. Okay, we require only coefficients. So what we need to do, okay, once we get this, what we need to do, how we will be solving, let's see. Okay, let's see that. We'll come up to the page which contains this formula. This is the page. This is the formula. This is the formula. Okay, and you need to be solving it like this. Fine, that is x upon x के नीचे जो होगा वो होगा b1 c2 minus b2 c1, means multiplication of b1 and c2 minus b2 and c1. Minus is there in the question. Okay, then c1 a2 minus c2 a1, then a1 b2 and a2 b1. This is the formula of cross multiplication. Okay, so if you can learn it, it's good. If you are not able to learn it, don't learn it. Okay, I will suggest that don't learn it. Okay, how it comes I will show you, that you can use. Always when you are solving,
you will make the line like this. Okay, and you will be writing b1 b2 c1 c2. See, they have written it in common, but x will be separate, y will be separate, and 1 will be separate. So when you are writing b1 b2 c1 c2, again here it will be c1 c2, and here it will be a1 a2 for y. Okay, everything should be written separately. x के नीचे क्या आएगा, b1, और उसके नीचे b2, c1 c2. y के नीचे क्या आएगा, और बीच में इक्वल्स टू आता है, y के नीचे आएगा c1 c2 a1 a2. 1 के नीचे a1 a2 b1 b2. ओके, अब आपको ये टर्म्स यहाँ लिख देने हैं. लिख देने के बाद उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है. कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई, c2 को b1 के साथ और b2 को c1 के साथ. सेम यहाँ पे c1 के साथ a2 को, c2 के साथ a1 को. देख लो फॉर्मूला कैसे आया, b1 c2 आया फॉर्मूला, ये देखो यहाँ पे b1 c2 b2 c1 माइनस b2 c1. देन यहाँ पे c1 a2 माइनस c2 a1, यहाँ से आया फॉर्मूला. देन a1 b2 माइनस a2 b1. ओके, तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, खाली ये ध्यान रखना है, इस तरह से आपको लिखना है कि b1 b2 c1 c2, देन c1 c2 a1 a2, देन a1 a2 b1 b2, ऐसे टर्म्स को लिख देना है. ओके, एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. तो चलो हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं. ओके फाइन, सो आपके स्क्रीन पर ये रहा एक एग्जाम्पल, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 46. दिस इज द एग्जाम्पल. एंड 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 74. तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे. व्हाट वी विल बी डूइंग, विल बी राइटिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो 46 इस साइड आ जाएगा, तो 2x प्लस 3y माइनस 46, 3x प्लस 5y माइनस 74. ओके, तो इतना हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया. उसके बाद हमको a1 a2 b1 b2 लिख देना है. पहले ऑलवेज साइड में एक काम करना है आपको. व्हाट वी नीड टू डू, एक्सक्यूज मी, साइड में a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख देना है, ताकि आपको पुट करते वक्त कंफ्यूजन ना हो. ओके, तो a1 जैसे 2 है, a2 है 3, b1 3 है, b2 है 5, एंड ये माइनस 46 है एंड माइनस 74. तो आपको यहाँ पुट करते वक्त दिक्कत नहीं होगा. पुट जब करते हो बेटा तो ये ध्यान रखो कि इस तरह से करना है. इन्होंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, तो आपको x के नीचे ऐसे स्लैश बनाना है, बीच में इक्वल्स टू, y के नीचे ऐसे लाइन बनाना है, फिर 1 के नीचे 1 मतलब कांस्टेंट टर्म के लिए. फिर यहाँ पे क्या लेना है, हमारा इक्वेशन क्या था, b1 b2 मतलब 3 5, b1 3 है, b2 5. देन b1 b2. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किससे करेंगे, c1 c2 से. तो c1 क्या है माइनस 46, c2 क्या है 74. ओके, अब y के नीचे क्या आएगा, c1 c2 मतलब माइनस 46 माइनस 74. अब c1 c2 a1 a2, a1 2 है, a2 3 है. ओके ठीक है, फिर उसके बाद 1 के नीचे क्या, a1 a2 2 3, और क्या आएगा b1 b2 मतलब 3 5. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 के साथ माइनस 74 मल्टीप्लाई में जाएगा, बीच में माइनस आएगा, और फिर उसके बाद आएगा 5 इंटू 16. सेम यहाँ पे 3 और 46 मल्टीप्लाई में आएगा, 2 एंड 74 आएगा, बीच में माइनस रखना है आपको. 2 5 10 आएगा, 3 3 9 आएगा. ओके, तो अब चलो देखते हैं सो मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे इसको. ओके, तो मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इसी को यहाँ पे, तो क्या लूँगा, 3 इंटू माइनस 74, बीच में माइनस 5 इंटू माइनस 46, इस तरह से लिखना है, और ऊपर x. फिर जब आप y इक्वल्स टू, फिर y के लिए करोगे तो y के लिए लिखेंगे किस तरह से, माइनस 46 इंटू 3, बीच में माइनस, देन 2 इंटू माइनस 74, 2 इंटू माइनस 74. साइन का बहुत ध्यान रखना है. ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 के नीचे सॉल्व कर लेंगे. फाइन, तो सेकेंड स्टेप में क्या आएगा, इस तरह से जो मैंने दिखाया था, देखो यहाँ पे भी इन लोगों ने ऐसे ही दिखाया है, इस तरह से मैंने भी कहा, आप ऐसे लिख लेंगे. फिर इसको सॉल्व कर देंगे. तो सॉल्व करने के बाद x के नीचे सॉल्व करके आया 8, y के नीचे सॉल्व करके आया 10, और ये 10 माइनस 9 आ गया 1. ओके, अब क्या करना है, जो लास्ट स्टेप है, इतना हो जाए तो x को भी 1 से कंपेयर करना है और y को भी 1 से करना है. मतलब x का जो भी आता है, मतलब x अपॉन 8 आया, तो
इक्वल्स टू 1/1, अगर y अपॉन 10 आया तो भी इक्वल्स टू 1/1, दोनों को जो कांस्टेंट टर्म से कनेक्ट करना है। अब मान लो ये 1 की जगह पे यहाँ पे 3 आता तो 3, कोई 3 आया तो 3, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, जो आया होता हम उसे लिखते हैं। ओके, क्लियर। तो बस अब कंपेयर कर दो तो क्या होगा, देखो इन्होंने कंपेयर किया यहाँ पे। ओके, दे आर कंपेयरिंग इट हियर। ओके, देखिए यहाँ कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया 8, y इक्वल्स टू 10। क्लियर, अंडरस्टूड। तो इस तरह से आपको x और y की वैल्यू मिल सकती है। ओके, समझे। तो इस तरह से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को फॉरवर्ड करना है। फाइन, समझ आ गया, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर फिर से एक बार मेथड को पूरा देखिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व इट। अब आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस भी गिवन है, वो भी हम एक बार देखते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ओके, यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज यूनिक सोल्यूशन मीन्स। यूनिक सोल्यूशन मीन्स दैट द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ओके, द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, तब हम कहते हैं कि जो सोल्यूशन है द सोल्यूशन इज यूनिक सोल्यूशन। ओके, तो उसका कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो देखते हैं यूनिक सोल्यूशन लाने के लिए ये कंडीशन होता है हमारे पास, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। तो हमको ऐसा है तो p की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2 पुट कर देंगे, मतलब a1 4 है, a2 2 है, b1 p है, b2 2 है। तो पुट किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आया आंसर p इज नॉट इक्वल टू 4। p 4 के इक्वल नहीं है, ऐसा आया। तो हमारा आंसर क्या है, देयरफॉर फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ p एक्सेप्ट 4 द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन। मतलब 4 के अलावा बाकी कोई भी नंबर हो सकता है जिससे यूनिक सोल्यूशन बनेगा। मतलब ये इक्वेशन को सॉल्व करके अगर यूनिक सोल्यूशन निकालना है तो 4 के अलावा कोई भी होगा, क्योंकि क्या आया, p इज नॉट इक्वल टू 4। क्यों, चलो चेक कर लेते हैं। तो अगर p की वैल्यू 4 होगी यहाँ पे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो, अगर मैं अब कंपेयर करता हूँ तो 4/2 मतलब a1/a2 और b1/b2 करो तो 4/2, तो ये तो दोनों इक्वल आ गए ना, a1/a2 और b1/b2 दोनों इक्वल आ गए। तो अगर 4 रखते हैं तो ये तो इक्वल आ जाते हैं। और इक्वल कौन से केस में होता है, या तो पैरेलल में या कोइंसिडेंट में, ठीक है। तो हमको तो क्या निकालना है, यूनिक सोल्यूशन की वैल्यू। तो इसने इसलिए हमने क्या लिखा कि 4 के अलावा कोई भी नंबर चलेगा, 4 के अलावा कोई भी नंबर होगा तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो इसलिए एक्सेप्ट फॉर एनी नंबर इट विल बी अ यूनिक सोल्यूशन, इट विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन। 4 नहीं होना चाहिए, 4 होगा तो क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल में कभी भी यूनिक सोल्यूशन नहीं आता। ओके, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 16, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस मतलब क्या होता है, जब ग्राफ कोइंसिडेंट हो तब इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस होगा। when the graph is coincident then and then only you will be having a infinite solution. So infinite solution की कंडीशन क्या है, ये स्क्रीन पे दिया आपको, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन किसकी है, फॉर इन्फिनाइट सोल्यूशन। अब फिर हमारे पास इक्वेशन गिवन है, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करना है या k की वैल्यू फाइंड करना है। अगर ए लीनियर इक्वेशन इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन है तो हम चलो पहले हम क्या करेंगे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 निकालेंगे, करके देखेंगे, फिर c1/c2 के साथ कंपेयर करेंगे चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही आता है कि नहीं आता है। तो पहले तो a1/a2, a1 मेरा क्या है k अपॉन a2 क्या है मेरे पास 12 इक्वल्स टू, ओके, b1 मेरे पास क्या है 3 एंड b2 क्या है मेरे पास k। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा सॉल्व करेंगे हम कैसे, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो b1 मेरा क्या है 3, b2 क्या है k इक्वल्स टू मेरा जो c1 है, ओके, जो मेरे पास मेरा c1 है वो क्या आएगा मेरे पास k -3, ओके, अपॉन क्या आएगा k।
ठीक है, दोनों माइनस है, माइनस माइनस है तो कट गया। ओके, तो ये मेरा क्या आया, b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। दोनों करके देखते हैं की वैल्यू क्या आती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, के स्क्वायर इक्वल्स टू 12 3 36। तो रूट लेंगे तो के इक्वल्स टू क्या आएगा 6। ओके, 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड के है, ठीक है, तो के कट जाएगा तो क्या बचा 3 इक्वल्स टू k-3। तो इस साइड आ जाएगा -3, इस साइड आएगा तो क्या होगा +3। तो यहाँ क्या आ जाएगा k इक्वल्स टू 6। समझ गए, दोनों को सॉल्व करने से k की वैल्यू क्या आई 6। फाइन, बट दोनों करके चेक करके देखना ही है। ओके फाइन, तो अब एक्सरसाइज आते हैं। तो एक्सरसाइज 3.5 में हमारे पास जो हमारा पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, no solution or infinitely many solution. In the case there is a unique solution, find it by using cross multiplication। मतलब इसमें पहले तो आपको चेक करना है कि किस टाइप का सोल्यूशन है, जैसे आपने सेकंड एक्सरसाइज में किया था। ओके, और अगर यूनिक सोल्यूशन जो है जिसमें, उसी को आगे सॉल्व करना है। यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो उसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो पहले चेक करना है कौन सा यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन है तो उसको आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। फाइन, तो ये आपको करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने डिस्कस किया ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और 2 दोनों वैसे ही क्वेश्चंस है। ओके, देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो इसको दो मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट अभी आप अपने नोटबुक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही कीजिए, सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं हम ऑलरेडी, इसलिए थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही कीजिएगा अपने नोटबुक में। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ बेटा, आज आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो, 25 मिनट का है, 30 मिनट का है, 20 मिनट का है, जितने मिनट का भी लेक्चर हो। ओके, आपको क्या करना है, लेक्चर खत्म होते ही, वेन एवर द लेक्चर इज ओवर, जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाता है आपको इमीडिएटली क्या करना है, लेक्चर खत्म हुआ, खत्म होते आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठ जाना है, या साथ साथ एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, आप लेक्चर मान लो 30 मिनट्स का, आपको 1 घंटा 1.5 घंटा और लगेगा, मतलब 2 घंटे में आपका एक एक्सरसाइज पूरा प्रॉपरली आप प्रिपेयर कर लोगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग लाइक दिस, देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू परफॉर्म। अदरवाइज इफ़ यू आर जस्ट ओपनिंग द यूट्यूब वीडियो, थोड़ा देखा फिर स्किप कर दिया, मैंने सोचा कि कौन देखने वाला है, कि मुझे आया कि नहीं आया, ऐसा करते रह जाएंगे अगर हम, तो हमारा एग्ज़ाम में हम कुछ नहीं परफॉर्म कर पाएंगे जब सिलेबस बहुत ज़्यादा होगा। ओके, ऑलरेडी हम हमारे ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, पॉलिनोमियल्स, नंबर सिस्टम, ये सब कर चुके हैं हम। ये हमारा थर्ड चैप्टर है जिसको हम डील कर रहे हैं। इसके बाद और एक चैप्टर शुरू हो जाएगा, तो मतलब 6 चैप्टर के करीब हो जाएंगे। तो सिलेबस 6 चैप्टर का हो रहा है, उसमें कितना आपको आता है, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। ओके, सो प्लीज़ कीप दिस थिंग्स इन माइंड एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। डोंट जस्ट अटेंड द लेक्चर एंड चलो लेक्चर हो गया, ऐसा दिमाग में लेके काम नहीं करना है। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी आर हैविंग द इक्वेशंस। ओके, अब इक्वेशंस में हमारे पास ये अलग अलग हैं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। ओके, वो लाइब्रेरी जैसा ही क्वेश्चन है, लैंडिंग लाइब्रेरी टैक्सी फेयर वाला। सेकंड क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। एक टेस्ट है जिसमें 3 मार्क्स ईच राइट आंसर के लिए, 1 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए कैलकुलेट करना है। तो उस तरह से आपको ये इक्वेशन बनाना है। फोर्थ एंड फिफ्थ, दे आर अ वेरी गुड काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम इसमें ही होता है। पहले 3 बहुत सिंपल है, एंड मैं क्यों देखो, मैं चाहूँ तो मेरे को इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स टू एक्सप्लेन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, बट वो एक जैसे ही क्वेश्चन है जो हर एक्सरसाइज में आ रहे हैं। ओके, बट अगर मैं आप खुद से नहीं ट्राई करोगे, देखो प्रॉब्लम सम का यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है कि अगर स्टूडेंट बार बार कहीं से देख के रेफर करके करता है ना, उसको कुछ लर्न नहीं होता। ठीक है, दिमाग में क्लियर करने के लिए आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। सो अब देखते हैं हम, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द हाईवे। One car starts from A, another car starts from B at the same time. The car travels in the same direction at different speed. They meet in 5 hours. तो 5 घंटे में मिलते हैं। Okay, if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two car? Okay, speeds. Okay, let the speed be x and y. Let the speed of one car be x and other car be y.
ओके, ठीक है। तो अब अगर देखो वो क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई स्पीड है, तो प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इफ वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी at same time, if the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. ओके, 5 घंटे के बाद वो मीट कर जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अगर टाइम निकालोगे तो क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे, राइट। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस गिवन है 100, स्पीड हमने एक्स और वाई माना। तो फर्स्ट केस में जब वो द प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन बी से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hour। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour। ओके, 1 घंटे में मिल जाते हैं, फाइन। तो क्या होगा, अगर मैं, चलो ऐसे इस तरह से कैलकुलेट करता हूँ, जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, अपोजिट एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो स्पीड क्या हो जाता है, ज़्यादा, तो टाइम कम। ओके, राइट। तो और जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा एक दूसरे से मीट करने में। क्यों, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, दूसरा भी ऐसे आ रहा है, तो दोनों को एक दूसरे को कवर करने के लिए टाइम लगेगा। बट अगर ऐसे आ रहा है और ऐसे आ रहा है, तो दोनों क्या होगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा। ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देखो किस तरह से इक्वेशन बनेगा, बड़ा सिंपल सा है। तो फिर हमारे पास क्या है, लेट द स्पीड बी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो टाइम कितना होगा, टाइम कितना लगेगा, टाइम ए, एक जो ए से चल रहा है 100/x प्लस 100/y। ओके, टाइम 1। टाइम 2 100/x माइनस 100/y। तो ये जो T2 होगा ये क्या होगा 1, और ये क्या होगा 5, ठीक है। क्यों, यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे टाइम माइनस हो रहा है एक दूसरे से, तो कम लगेगा, ठीक है। अंडरस्टूड। तो इस तरह से इक्वेशन बनाना है, बस इसको आपको सॉल्व कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके यू नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। फाइन, इज इट क्लियर। कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ओके, लेट्स सी फर्दर, क्योंकि क्या है, अगर आप एक बार करोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। फाइन, देन टू ट्राई टू सॉल्व इट, सॉल्व करने का कोशिश करना है। अगर सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। ओके, तो ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। चलो ठीक है, अगर मान लो पहला इक्वेशन ही है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन है, क्या आया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, चलो 5 इक्वल्स टू 100/x प्लस 100/y। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको तो पहले लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, लीनियर नहीं है ना। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 1/5 इक्वल्स टू x/100 प्लस y/100। अब ईजी हो जाएगा, क्यों, दोनों के नीचे 100 आ जाएगा। ओके, ऐड करने के लिए दोनों का बेस सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 100। इट विल बी x प्लस वाई अपॉन 100 इक्वल्स टू 1/5। अब 100 को इस साइड ले जाओ तो क्या होगा, 100/5 क्या हो जाएगा, 100/5 इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो 100/5 क्या हो जाएगा, 20 इक्वल्स टू x प्लस वाई। दिस इज द इक्वेशन, इस तरह से इक्वेशन बनाना है आपको। फाइन, ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको, दूसरा अपने आप प्रिपेयर कर लेना है। समझ में आया, चलो ठीक है। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा, बाकी फिफ्थ क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। ओके, if we increase the length by 3 units, the breadth by 2 units, the area increases by 67 square unit। तो अब देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। हमको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ एल, लेट द लेंथ बी एल एंड ब्रेथ बी बी। सो पहला क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स।
ओके, इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 तो एल क्या हो जाएगा, एल माइनस 5, ओके, इनटू एरिया निकाल रहे हैं ना, तो इज ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 तो बी प्लस 3, ओके, दैट विल बी इक्वल टू एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, एरिया क्या होगा, एल इंटू बी, ओके, प्लस गेट्स रिड्यूस बाय 9 तो एल इंटू बी माइनस 9, ओके। इस तरह से दूसरा भी बनाना है, बट सॉल्व कैसे करना, देखो सॉल्व बहुत इजीली हो जाएगा। आपको लगेगा कि सर ये एल बी को कैसे करेंगे, तो पहले इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, एल से पहले दोनों को करोगे तो पहला आएगा एल बी, ओके, प्लस 3L, फिर 5 से करोगे, ओके, तो माइनस 5B माइनस 15 इक्वल्स टू एल बी माइनस 9, तो एल बी और एल बी कट हो जाएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन को देखिए, घबराना नहीं है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि यार ये तो कैसे होगा। फिर क्या होगा, 3L माइनस 5B माइनस 15 और 9 इधर ले आओ तो प्लस 9 हो जाएगा, तो माइनस 15 प्लस 9 आपका क्या होगा, माइनस 6 इक्वल्स टू 0, बन गया इक्वेशन, ओके। 3L माइनस 5B माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दूसरा इसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है, उसको सॉल्व करना है। इफ़ यू अटेम्प्ट इट यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो मेथड है दैट्स कॉल्ड द रिडक्शन मेथड, okay. We will see in the next class, and this after this the chapter will be over, okay. Fine, but till then please try to solve this, okay, and complete it, okay. So let's meet in the next lecture. Till then, stay at home, thank you, and have a nice day.